So in our previous class, we discussed the heterosis and theories of heterosis and how we calculate the heterosis. So there is the important step in the heterosis or the hybrid formation. The most important thing is the first one is the development of the inbred line. How to develop the inbred lines? Like we continue self the different self one variety or the select one plant and continuously self pollinate this plant. This leads to the ultimate at the end lead towards the inbred lines. So after this, we check this inbred line for their combining ability. Either these inbred lines are combined with each other very accurately or only in a specific performance. Like as I describe combining ability in tomorrow class a little bit, but here is some. If if we have five inbred lines A, B, C, D and E. These five are inbred lines. We cross the A cross with B. Oh, sorry. A, B, C, D and E. फाइव इनब्रेड लाइंस हैं. A इनब्रेड लाइन क्रॉस कर रही है B के साथ. A इनब्रेड लाइन क्रॉस कर रही है C के साथ. A इनब्रेड लाइन क्रॉस कर रही है D के साथ. A इनब्रेड लाइन क्रॉस कर रही है E के साथ. B इनब्रेड लाइन क्रॉस कर रही है C के साथ. B इनब्रेड लाइन क्रॉस कर रही है D के साथ. B इनब्रेड लाइन क्रॉस कर रही है E के साथ. पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में बना रहा हूं कि इन फाइव इनब्रेड लाइंस के आपस में क्रॉसिंग के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. C क्रॉस कर रही है D के साथ, C क्रॉस कर रही है E के साथ और D क्रॉस कर रही है E के साथ. इसके अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि there are the A, B, C, D and E inbred lines are present, how many crosses are formed from this? Single crosses or the only a direct cross? These are known as direct cross, but when we talk about the reciprocal crosses, we usually B cross A is also included. This is reciprocal cross, this is direct cross, but we are talking about only direct cross. अब आप इन पांच इनब्रेड लाइन से कितने डायरेक्ट क्रॉस बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. सो कंबाइनिंग एबिलिटी की हम बात कर रहे थे. एक होती है GCA जिसको हम कहते हैं जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी. एक होती है SCA जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी. अब एक्चुअली होता क्या है कि जब जो A लाइन है, लेट्स सपोज जो A इनब्रेड है, परफॉर्म गुड इन क्रॉस ऑफ A क्रॉस B एंड A क्रॉस E. अगर तो जो A इनब्रेड लाइन है वो अच्छा परफॉर्म करती है जब वो A और B से जब वो क्रॉस करती है या वो जब E से क्रॉस करती है, लेकिन C और D के साथ वो बुरा परफॉर्म कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि जो A है उसकी जो स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी है विद द इनब्रेड लाइन B एंड E वो अच्छी है. वो क्या है? अच्छी है. लेकिन हम मूव करते हैं B की तरफ. B क्रॉस C, B क्रॉस E, गुड परफॉर्मेंस. while B क्रॉस D, नॉट गुड परफॉर्मेंस. तो कोई इसमें बता सकता है कि B जो इनब्रेड लाइन है वो यहाँ पे
एक स्पेसिफिक कंबाइनर के तौर पे अच्छी है या वो एक जनरल कंबाइनर के तौर पे भी अच्छी है। जो जनरल कंबाइनर होगी वो ऑलवेज हम कहेंगे कि वो स्पेसिफिक कंबाइनर भी अच्छी होगी। तो आप ये बताएं कि जो यहाँ पे बी इनब्रेड लाइन है वो जनरल कंबाइनर होगी या स्पेसिफिक कंबाइनर, एनी आइडिया? यहाँ पे बी ने टोटल बनाए हैं 3 क्रास, 3 में से वो 2 क्रासेस के साथ अच्छी है, तो इट्स मीन हम कह सकते हैं कि उसकी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी जो है वो अच्छी है, क्योंकि जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी यहाँ पे ऑलमोस्ट उसकी 65% है। अगर हम जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे होते हैं कि वो कितने इनब्रेड लाइंस के साथ क्रॉसिंग कर रही है और उसमें से कितनों के साथ वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक्चुअल पॉइंट ये होता है। So this is the about the what is general combining ability and what is specific combining ability. If an inbred line perform good in a series of crosses, the general combining ability is good. And if a inbred line is perform good in only some specific cross, a specific combining ability is good. So we evaluate the inbred line for combining ability. So combining ability is the ability of an inbred line to transmit their desirable performance to the hybrid progeny. There is the general combining ability, which is average contribution that inbred makes to hybrid performance in a series of hybrid combination to the contribution of other inbred lines in a hybrid performance in the same series. And this is due to the gene effect. While there is a specific combining ability in which an input line contribute to hybrid performance in class with only a specific input line. The only difference is here a series of hybrid combination, here only a specific input line. So we usually say that general combining ability is due to additive gene action and specific combining ability is due to the non-additive gene action. इनबिल्ड लाइन सबसे पहले अब बनती कैसे है कि इनबिल्ड लाइन को हम एक ब्रीडिंग लाइन होती है जिसको हम मेंटेन करते हैं 5 to 6 जनरेशंस तक सेल्फ पोलिनेशन करवा के। इनबिल्ड लाइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लाइक दिस मेथड इज रिलेटिवली इजी टू इम्प्लीमेंट। इनबिल्ड लाइंस बनाना एक काफ़ी इजी है, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट करना भी इजी है। अगर आपके पास इनबिल्ट लाइंस होगी तो आप उनकी जनरल और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी easily check कर सकते हैं। It can be used to produce the variability for hybrid breeding program. Advanced genotype of synthetics show little yield reduction from synthetic one. It's making it possible for farmer to save and use the seed from current season to plant in the next season. This sentence is actually about the synthetic cultivars, and later in our further coming lecture we discuss about the synthetic cultivar, what is it, and how we make the synthetic cultivars. Because inadequate seed is often produced in synthetic one, the method failed to exploit the maximum effect of heterosis. एक्चुअल सिंथेटिक में हमारे पास बहुत कम सीट होता है सिंथेटिक वन से जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस वजह से ये जो मेथड है वो मैक्सिमम हेटेरोसिस के इफेक्ट से फेल होता है। इसमें नेचुरल सिलेक्शन जो है वो जीनोटाइप की कंपोजिशंस को जो है वो
समटाइम नेचुरल सिलेक्शन जो है वो हमारे कुछ अनफेवरेबल करेक्टर्स, अनफेवरेबल प्लांट्स को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से ये मेथड जो है वो अच्छा नहीं किया जाता, कहा जाता। सॉरी, हाइब्रिड्स की टाइप्स क्या है? फर्स्ट वन इज द सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड एक ऐसा हाइब्रिड होता है जिसमें हम दो इनब्रिड लाइंस को यूटिलाइज करते हैं, ए को बी से क्रॉस करवाते हैं, तो जो हाइब्रिड बनता है उसको हम कहते हैं सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। डबल क्रॉस हाइब्रिड में एक्चुअली चार प्रोजनीज इन्वॉल्व होती हैं। पहले दो प्रोजनीज ए को बी से क्रॉस कराया तो उनका हाइब्रिड बन गया ए बी, फिर सी और डी को क्रॉस कराया तो उनका हाइब्रिड बन गया सी डी। देन हम उन हाइब्रिड्स के जो प्रोजनी होती है यानी ए बी और सी डी, इनको आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं डबल क्रॉस हाइब्रिड। देयर इज आल्सो अ थ्री वे क्रॉस। इन थ्री वे क्रॉस वी एक्चुअली क्रॉस द टू हाइब्रिड्स which give the result AB, and we cross with these AB with the a third inbred line which is known as the C inbred line. This is known as a three-way cross. There is a top cross, a cross between an inbred line and an open pollinated variety is known as the top cross. एक इनब्रेड लाइन होगी और दूसरी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी होगी, यानी वो इनब्रेड नहीं होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? टॉप क्रॉस कहेंगे। डबल टॉप क्रॉस क्या है? क्रॉस बिटवीन सिंगल क्रॉस हाइब्रिड एंड ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। दो इनब्रिड लाइंस की क्रॉस को जब हम रिजल्ट ए बी लेते हैं और उसको ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से क्रॉस करवाएंगे तो वो डबल टॉप क्रॉस हाइब्रिड कहलाएगा। ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से मुराद से होती है कोई भी क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी होगी हम उसका क्रॉस कराएंगे अपने इनब्रिड लाइन के साथ। Hybrid cultivar, how to produce? Hybrid cultivar is actually produced in three steps. The first one step is development of इनब्रिड लाइंस। सबसे पहले हमने क्या करना है? इनब्रिड लाइंस की डेवलपमेंट करनी है। इनब्रिड लाइंस के बनाने के बाद हम इनब्रिड लाइंस की क्या करना है? सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बनाना है, हेटेरोजाइगस रिसाइट। देन हमने उसके हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस करना है, यानी उसके सीड को इंक्रीज करना है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। This is about the hybrid cultivar inbred line combining ability and how to produce this inbred line.